کراچی سے مبینہ اغوا ہونے والی دعا زہرا کے والدین نے حکومت سندھ سے واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ دعا زہرا کے والدین کا کہنا ہے کہ 10 دن سے نہ سو سکے نہ کچھ کھا سکے۔ خدا سے دعا کر رہے تھے کہ بیٹی زندہ ہو۔ دعا زہرا کے والدین نے کہا نکاح نامہ بھی جعلی ہے اور ویڈیو بیان بھی زبردستی لیا گیا۔ دعا زہرا کے والد نے کہا کہ وہ لاہور نہیں گئے۔ اتنی راتوں سے نہ ہم سوئے، نہ کھایا، نہ پیا، نہ کچھ کیا۔ میں خود ڈپریشن انزائٹی کی مریض ہوں، لیکن جب میں نے صبح نماز پڑھ رہی تھی اور میری بہن نے مجھے کہا کہ یہ زہرا ہے، اس وقت میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ میری بیٹی مجھے زندہ نظر آئی۔ کوئی رشتہ بھیجے، اگر وہ منع کرے ہاں کرے، آپ کسی کی بیٹی کیسے باعث اب اٹھا کے لے کے جاتے ہو؟ یہ اغوا کا کیس ہے اور میں اس کے اوپر اس کا یہ کیس کروں گی۔ اس کے اوپر نہ اس پہ سٹیم ہے نہ اس کی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نکاح فیک ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ مولوی لے کر آئے جس سے نکاح پڑھوایا، جو ویڈیو دکھا رہے ہیں جن لڑکیوں نے شادی کی ان کی ویڈیو دیکھیں، آپ میری بچی کی ویڈیو دیکھیں، بالکل پیلی زرد ہو رہی ہے اور ایک سانس میں وہ سارا بول گئی ہے، جیسے اس کو رٹا لگایا ہوا ہے کہ تو نے یہی بولنا ہے یہی بولنا ہے۔ اس کو جو بولا جا رہا ہے اس وقت، اس کو جو پریشرائز کر کے بولا جا رہا ہے وہ بول رہی ہے، ٹھیک ہے؟ 18 تاریخ کو میں کہیں نہیں گیا۔ اگر میں کہیں گیا ہوں، کوئی ایویڈنس ہوگا ان کے پاس، میں ان کے گھر گیا، ان کے پاس میری کوئی فوٹیج ہوگی۔ میں آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، مراد علی شاہ صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ بچی کو کراچی میں لائیں، کیونکہ یہ کراچی سے اغوا ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہاں پر لائیں، ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کریں، وہ بچی کو کراچی میں لائیں، میرے حوالے بھی نہیں کریں، کیونکہ اس وقت میں ایک پارٹی بن چکا ہوں نا اس کے اندر۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کریں، شہلا رضا صاحبہ کے حوالے کریں، مجھے ان پر پورا ٹرسٹ ہے۔ اس کے بعد ایک انویسٹیگیشن کریں، پھر جو نکلے گا وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ دعا زہرا معاملے میں مرکزی کردار ظہیر احمد کا کہنا ہے کہ وہ دعا زہرا کو اغوا نہیں کیا، وہ خود آئی۔ ان کا آن لائن گیم کے دوران 3 سال پہلے رابطہ ہوا، نکاح ہو چکا ہے، اس کے گھر والے بھی خوش ہیں۔ میں لاہور کا رہائش ہوں، تو یہ آن لائن گیم PUBG موبائل سے ہمارا رابطہ ہوا اور اسی سے ہم منسلک ہیں۔ 2-3 سال سے ہمارا رابطہ تھا، ابھی آ گئی میرے گھر کے باہر آ گئی، باہر آ کے سے کانٹیکٹ کیا، میسیج کیا تو میں باہر گیا، پھر میں ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوئی تھی، گاڑی رینٹ کی تھی تو اس کو رینٹ دیا اور چلا گیا، آ گئی تھی میرے پاس۔ جی میرے گھر والے سارے آمادہ ہیں اس بات پہ، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اس کے گھر والوں کی رضامندی سے سب ہو، مگر اس کے گھر والوں نے کوئی آگے سے پازیٹیو رسپانس نہیں دیا، اس کی وجہ سے یہ خود ہی آ گئی تھی۔ میں نے اسے نہیں کہا کہ تم آؤ ادھر سے۔ میں پڑھتا ہوں FSC پری میڈیکل ریسنٹلی کمپلیٹ کیا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا۔ لاہور ہم رینٹ پہ رہتے ہیں۔ امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر کی وزارت خارجہ آمد۔ امریکی ناظم الامور کی وزیر مملکت برائے خارجہ سے ملاقات۔ ہنا ربانی کھر نے اس ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستان امریکہ سے 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر کی وزارت خارجہ آمد۔ امریکی ناظم الامور کی وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے دوران ہنا ربانی کھر کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان امریکہ سے 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران سے۔ عمران، اس ملاقات سے متعلق بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے جب سے وزارت کا چارج سنبھالا ہے، آج یہ پہلی ملاقات ہوئی امریکی ناظم الامور کی۔ اس ملاقات کے دوران جو ہے وہ باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور باہمی احترام اور اعتماد اور مساوات پر مبنی 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا محمد عمران، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بجلی کی پیداوار، ترسیل اور کھپت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو لوڈ شیڈنگ کے سدبات کے لیے جامع حکمت عملی پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر غور۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بجلی کی پیداوار، ترسیل اور کھپت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو لوڈ شیڈنگ کے سدبات کے لیے جامع حکمت عملی پر بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس اور اس اجلاس میں بجلی کے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر غور کیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے۔
फैसलाबाद में बिजली की बंदिश के बायस कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। लोड शेडिंग के बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे फैसलाबाद से जुल्करनैन ताहिर से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में लोड शेडिंग की वजह से दुकानदार, ताजर हजरात और आम शहरी जो हैं वो इस वक्त परेशान दिखाई देते हैं। फैसलाबाद में डिमांड और सप्लाई में जो तजाद है वो 500 मेगावाट तक पहुंच चुका है। फैसलाबाद की डिमांड जो है वो 2400 मेगावाट है, जबकि सप्लाई जो है वो 1900 मेगावाट है। और 500 मेगावाट के इस फ़र्क की वजह से वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। अगर शहरी इलाकों की बात की जाए तो शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे और देही इलाकों में 8 से 10 घंटे तक जो है वो बिजली की बंदिश होती है, जिस वजह से कारोबारी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका सूरत हाल पर क्या कहना है। इन दिनों में तो हमें बिजली चाहिए होती है और लाइट 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगातार जा रही है, जिसकी वजह से हमारे कारोबार में बड़ी डिस्टर्ब। और रोज़ा रखा होता है, रोज़े के साथ सारा गाहक भी मुतासर होता है, यूपीएस भी चलता है और फिर बंद हो जाता है। ईद से कबल दुकानदारों ने जो है वो साल भर का स्टॉक जो है वो सेल करना होता है। उम्मीदें दुकानदारों की ईद से वाबस्ता होती हैं, बहुत सारे खर्चे निकालने होते हैं, लेकिन बिजली की बंदिश की वजह से ना तो जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त हो रही हैं, और अगर कोई गाहक आता भी है तो वो चीज़ ख़रीदने की बजाय दुकान से निकल जाने को तरजीह देता है, जिस वजह से कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जी। इमरान खान और असद उमर के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुआविन वकील की इल्तवा की दरख्वास्त। आइंदा तारीख पर दलाइल ना हुए तो अपील खारिज कर देंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया। अगर हाई कोर्ट ने कोई स्टे दिया है तो बताएं, मुनासिब होगा पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें। मुआविन वकील इमरान खान की जानिब से कहा गया, यह आपका मौक़िफ़ है, कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया। इमरान खान और असद उमर के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का ये केस है। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुआविन वकील के इल्तवा की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइंदा तारीख पर दलाइल ना हुए तो अपील खारिज कर देंगे। ये भी कहा कि अगर हाई कोर्ट ने कोई स्टे दिया है तो बताएं, जिस पर मुआविन वकील इमरान खान ने बताया कि मुनासिब होगा पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा यह आपका मौक़िफ़ है, कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। इमरान खान और असद उमर के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का ये केस है और तहरीक इंसाफ की जानिब से मुआविन वकील के इल्तवा की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइंदा तारीख पर दलाइल ना हुए तो अपील खारिज कर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट मरियम नवाज की उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त पर समाअत। 2 रुकनी बेंच के मेंबर जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से माजरत कर ली। नैब ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया। नैब ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी है। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए, नैब की जानिब से ये जवाब जमा कराया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच के मेंबर जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से माजरत कर ली। नैब ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया है। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की कॉल पर मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। इस्मा शौकत इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं, जबकि कमरुल मुनव्वर ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल बताएंगे। सबसे पहले कमरुल मुनव्वर से जानेंगे। कमर, बताइएगा 12 बजे का टाइम बताया गया था एहतजाज का और शुरू हो गया, और ये भी बताइए कि क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के। जी बिल्कुल, कुछ कारकुनान जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया था कि G61 में जो कवर्ड मार्केट है वहाँ पर वो कारकुनान तमाम इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो है वो इस तरफ मार्च किया जाएगा उनकी जानिब से। इंतज़ामिया ने जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर्स लगा कर रास्ते बंद किए थे। सिर्फ एक ही रास्ता जो है जिसको मार्गला रोड का रास्ता कहा जाता है उसको खुला छोड़ा गया है कि कारकुनान जो है वो वहीं से आएँ और वहीं से एग्ज़िट जो है उनको दिया जा रहा है, क्योंकि दूसरे जो रेड जोन में आने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए भी एक ही रास्ता जो है वो खुला है और वो मार्गा रोड का रास्ता है। 750 पुलिस एहलकारों को जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए तैनात किया गया है, जबकि रेंजर्स की हम गैर मामूली नफरी जो है वो देख रहे हैं। बड़ी तादाद में रेंजर्स की जो एंटी राइट फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसने इलेक्शन ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि जितनी भी अहम इमारतें हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट और दूसरी इमारतें शामिल हैं वहाँ पर जो है वो उन्होंने अपने हिसार में लिया और
आम लोगों को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पर जिस जगह पे इलेक्शन कमीशन वाक़ है, इसके करीब तमाम असासे इमारतें मौजूद हैं, वहाँ पर भी रेंजर्स की नफरी को तैनात किया गया। दाखिली रास्तों में से 4 रास्ते जो हैं, इसमें सरीना चौक, इसके अलावा मैरियट चौक, जबकि नादरा चौक और डी चौक जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगा के बंद किया गया। जबकि बरी इमाम से आने वाला जो रास्ता है, जिसको 5th एवेन्यू का रास्ता कहा जाता है, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है और वहाँ से आने जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान नियाज़ी फॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपा रहे हैं। दामन साफ है तो रसीदें दिखाएं। इलेक्शन कमीशन पर धावा ब्लैकमेलिंग है। फॉरेन फंडिंग करने वालों ने इमरान खान के जरिए मुल्क की तबाही की। बरादर इस्लामी ममालिक के तोहफे बेचने वाला कुछ भी बेच सकता है। एहसन इकबाल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब इमरान नियाज़ी कोशिश कर रहा है कि उसकी करप्शन पे सवाल ना पूछे जाएं। इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलना इमरान नियाज़ी का ब्लैकमेलिंग हथकंडा है। फॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हो? अगर इमरान नियाज़ी तुम्हारा हाथ साफ है तो फॉरेन फंडिंग का हिसाब दो, रसीदें दो। आप किसी की शख्सियत इससे अंदाज़ा कर लें कि जो शख्स इंतहाई बरादर मुल्क के तोहफे जो उसको भाई बना के दिए गए हों, उनको भी बाजार में बेच के अपनी जेब गर्म कर सकता है, तो वो किसी और चीज़ का सौदा करने में कितनी देर लगाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के सवालों के जवाब दें। जो सवाल पूछे उसे गाली और धमकी दी जाती है। फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान मर्जी का मैच अंपायर और खिलाड़ी चाहते हैं, जहां उनकी मर्जी से आउट और नॉट आउट दिया जाए। इसी तरह वो मर्जी का जज, वकील और मर्जी का फैसला चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मुखालफिन ने सवाल उठाए तो उन्हें सजाए मौत की चक्कियों में डलवा दिया गया, मगर 4 साल के दौरान एक सबूत भी ना दे सके। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का मकसद आईनी इदारे पर दबाव डालना है। एक बयान में शहरी रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग नहीं ली तो डर किस बात का है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीक इंसाफ ने खुद नामजद किया था। साजिश का इल्ज़ाम अमरीका पर लगाते हैं और एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर करते हैं। इमरान खान अपने कारकुनान और वोटर्स को बयानिए की आड़ में गुमराह कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, ये अवाम के रास्ते में कोई रुकावट जो है वो खड़ी नहीं कर सकता और हम हर हालत में जो है वो वहाँ पहुँचेंगे, पहुँच के अपना रिकॉर्ड जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि वो हर हाल में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर पहुंचेंगे, कोई रुकावट उन्हें नहीं रोक सकती है। उन्होंने कहा कि एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है और वो दीगर कारकुनान के हमरा इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कराची वालों के लिए बिजली 5 रुपये 27 पैसे महंगी होने का इम्कान है। मुल्क के बाकी सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये 15 पैसे महंगी होने का इम्कान है। दरखास्त मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई थी। नेपरा की जानिब से दरखास्तों पर समाअत के बाद फैसला किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अलीम मलिक, बताइएगा। जी, एक तो भर में बिजली की लोड शेडिंग जारी है, ताहम लोड शेडिंग के सताए जो शहरी हैं उनके लिए एक बुरी खबर यह है कि जो के इलेक्ट्रिक और CPPA की जानिब से जो दरखास्तें दायर की गई थी उन पर कल समाअत होने जा रही है। कराची वालों के लिए बिजली 5 रुपये 27 पैसे फी यूनिट महंगी होने की दरखास्त की गई है, जबकि मुल्क के जो बाकी सार्फिन हैं उनके लिए CPPA ने बिजली 13 रुपये 15 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दायर की थी। दोनों जो अलग अलग दरखास्तें हैं इन पर कल समाअत होगी। CPPA की दरखास्त पर भी समाअत होगी और के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर अलग से समाअत होगी। ये जो दोनों कंपनियों ने जो दरखास्तें दायर की गई थी ये मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई थी, जिस पर कल जो है समाअत होगी और समाअत के बाद नेपरा सिलसिले में फैसला करेगा कि जो इजाफा मांगा गया है वो कितना सार्फिन पर मुंतकिल करना है और उस सिलसिले में जितना जो हतमी फैसला होगा वो कल नेपरा समाअत के बाद करेगा। तो बिजली सार्फिन के लिए, मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के लिए भी बिजली महंगी होने जा रही है, जबकि जो दीगर तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन हैं उनके लिए भी कल बिजली जो है महंगी करने की दरखास्तों पर समाअत होने जा रही है। जी अली मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम के लिए ईद का तोहफा 1 मई से मुल्क भर में लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग पर आला सतह के हंगामी इजलास में फैसला। 1 साल से बंद पड़े 27 बिजली घरों में से 20 को फ़ाल बना दिया गया है। ये ब्रीफिंग दी गई। गुज़िश्ता हुकूमत ने 4 साल में बिजली घरों के लिए ईंधन नहीं खरीदा। वज़ीर आज़म को ये ब्रीफिंग दी गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे यासिर मलिक। यासिर बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आला सतह का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को जो ईद के लिए तोहफा दिया वो ये है कि 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की हदायत की गई है। 1 साल से ज़ायद अरसे से बंद पड़े जो 27 बिजली घरों में से 20 को जो है वो फाल कर दिया गया है। आला सतही इजलास में जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें यह भी कहा गया है कि 20 बिजली घरों के दोबारा चलने से बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हुकूमत ने 4 साल में बिजली घरों के लिए ईंधन नहीं खरीदा। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 2 हफ्ते में न सिर्फ ईंधन का इंतजाम किया बल्कि इन बिजली घरों से बिजली की पैदावार बढ़ाकर लोड शेडिंग का सदेबाब भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब ब्रीफिंग में यह भी बताया गया है कि इस वक्त मुल्क में बिजली की मजबूरी जो पैदावार है वो तकरीबन 18,500 मेगावाट है। तलब जबकि जो है वो बिजली की जो शॉर्टफॉल है वो 500 से 2,000 मेगावाट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हुकूमत संभालते ही ब्रीफिंग दी गई थी कि 27 जो बिजली घर हैं ईंधन न होने की वजह से या दीगर तकनीकी खराबियों की वजह से वो बंद पड़े थे, जिसकी लोड शेडिंग की बड़ी वजह जो है वो गुज़िश्ता हुकूमत का बिजली घर चलाने के लिए ईंधन की बर वक्त फराहमी जो है उसका मंसूबा जो है वो नहीं बनाया गया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका यासिर मलिक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान बदस्तूर जारी है। डीजल ना मिलने पर किसानों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। बहावल नगर, ज़ाहिरपेर, दुनियापुर, शोनिया समेत कई इलाकों में डीजल नायाब होने के बायस किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल पंप्स पर डीजल के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसानों का कहना है कि डीजल ना मिलने की वजह से फसलों की काश्त मुतासिर हो रही है। दूसरी तरफ बाज़ इलाकों में नहरी पानी का मसला भी संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अब तक हल्फ नहीं लिया गया, सदर गैर ज़रूरी ताख़ीर कर रहे हैं। हमजा शहबाज की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत दोपहर 2 बजे फिर होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को विफाक से रब्ता करके हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ ना लेने के मामले पर दोबारा समाअत हुई। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद को विफाकी हुकूमत से राबता करके हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत कर दी। एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालत की मुआवनत करने की भी हिदायत कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 21 रोज़ से पंजाब में आइनी बहरान है। अदालती हुक्म के बावजूद सदर ने वज़ीर आला के हल्फ के लिए नुमाइंदा मुक़र्रर नहीं किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हल्फ ना लेने की आइनी वजूहात के मुतालिक गवर्नर पंजाब का ख़त वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को इरसाल कर दिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से भिजवाए गए ख़त में गवर्नर पंजाब ने हल्फ ना लेने की जो आइनी वजूहात बयान की थी वो भी शामिल की गई हैं। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दस्तावेज़ का हिस्सा है। ज़राए का कहना है कि दस्तावेज़ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को भिजवाई गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को 28 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आईन पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देता है। आइंदा इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए, जिस पर अदालत ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को 28 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस अजहर जावेद पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया। नया 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस फारूक हैदर की माजरत के बाद 2 रुकनी बेंच तहलील हो गया था। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। इस नए बेंच से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा।
جی بالکل، مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی سے متعلق درخواست پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نیا 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس اسد جویر گرال پر مشتمل نیا 2 رکنی بینچ کچھ دیر بعد مریم نواز کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ اس سے قبل جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل بینچ تشکیل دیا گیا تھا، لیکن جسٹس فاروق حیدر نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر کیس کی سماعت سے معذرت کر لی تھی، جس کی وجہ سے بینچ تحلیل ہو گیا تھا۔ مریم نواز کی جانب سے یہ درخواست میں نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ وہ عمرے کے لیے جانا چاہتی ہیں اور ان کا جو پاسپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر رکھا گیا تھا وہ پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دیا جائے، جبکہ نیب کی جانب سے 2 صفحات پر مشتمل تحریری جواب جمع کروایا گیا ہے، جس میں نیب نے مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے سے متعلق درخواست کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ مریم نواز کی چودھری شوگر مل کیس میں ضمانت منظوری کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور اسی بنیاد پر مریم نواز کی اس درخواست کو مسترد کیا جائے۔ تو اب نیا 2 رکنی بینچ کچھ دیر بعد سماعت کرے گا اور پھر آج کی سماعت سے متعلق حکم جاری کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پاکستان میں عید کے بعد ہنگامہ خیز ماہ کا آغاز ہوگا۔ شیخ رشید کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ استعفے لیے بھی جا سکتے ہیں اور دیے بھی جا سکتے ہیں۔ ملک کے مسائل کا واحد حل صرف عام انتخابات ہیں۔ IMF کے دباؤ ڈالنے سے حکومت اپنی سیاسی قبر کھو دے گی۔ شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان میں عید کے بعد ہنگامہ خیز ماہ کا آغاز ہوگا، استعفے لیے بھی جا سکتے ہیں اور دیے بھی جا سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا شیخ رشید کے بیان پر رد عمل، شیطان رمضان میں جھوٹ کے ساتھ نمودار ہو گیا ہے، ایسا کہنا ہے رانا ثناءاللہ کا۔ مزید کہا، جو کہتا تھا تحریک عدم اعتماد ناکام ہے ناکام ہے ناکام ہے، وہ اس کی کامیابی کے بعد اب نیا چورن بیچنے آ گیا ہے۔ یہ وہی جھوٹا شخص ہے نا جو کہتا تھا کہ اب سیاست نہیں کروں گا۔ رانا ثناءاللہ کی جانب سے کہا گیا کہ اگر 8 سال بعد عمران نیازی الیکشن کمیشن جا ہی رہا ہے تو غیر آئینی اور فارن فنڈنگ، منی لانڈرنگ، اس کے علاوہ چندے کے پیسے کی لوٹ مار کا جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتے ہیں، سیاست میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا کیونکہ غنڈے اور بدماش اب ملک پر مسلط نہیں ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے، شیطان رمضان میں جھوٹ کے ساتھ نمودار ہو گیا ہے، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اب نیا چورن بیچنے آ گیا ہے۔ یہ وہی جھوٹا شخص نہیں جو کہتا تھا کہ اب سیاست نہیں کروں گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے شیخ رشید کے بیان پر یہ رد عمل دیا ہے۔ الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ ہوں گے، باقی جو کرنا ہے کرو، ہم سیکیورٹی دیں گے، رانا ثناءاللہ کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو قانون کو ہاتھ میں لے گا، قانون اسے ہاتھ میں لے گا۔